Hello my dear friends, I'm Professor YM Khan, and in today's video we will discuss the classification of metals, the properties of metals, what do you mean by materials, what do you mean by metallurgy, and some of the basic parts of your metallurgy. Now this is the first video of our unit number 1, and our unit number 1 is properties, structure of materials and strengthening mechanism. So before starting the video, I'll request you to subscribe to my channel, like this video and share this video, and if you have any query you can comment on this particular video. So let us begin with metallurgy. What do you mean by metallurgy? You can see the word is having a part metal and another part lurgy, so it is obvious that it is related with metal. So it is the branch of science and technology concerned with the production, purification and properties of metal. So in this particular branch of science and technology, that is metallurgy, we deal with the study of production, purification and properties of metals. You can see in this particular slide that a particular metal is being heated and is being it is being molting. Okay, now the molten metal is being poured into a die, you can see it. Then that a particular metal is being heated, or you can say it is being heat treated. Okay, so in this branch we will study about how to produce, how to purify and what are the properties of metals. So this is your metallurgy. Okay, now next is material. What do you mean by a material? Because our subject name is materials and metallurgy, so you should know the meaning of materials as well as metallurgy. So we have seen the meaning of metallurgy, but we have to see the meaning of material. Now material is nothing but the matter from which a thing is or can be made. ये वो चीज़ है, मटेरियल वो चीज़ है, ये वो मैटर है जिससे हम क्या बनाते हैं, किसी चीज़ को, किसी थिंग को प्रोड्यूस करते हैं. लाइक दिस यू कैन सी इन द पिक्चर. हमने क्ले से ये मटके बनाए हैं, ये लकड़ी के पैनल्स है, आपको ग्लास दिख रहा होगा, पेपर दिख रहा होगा, यहाँ प्लास्टिक है, यहाँ सोडा कैंस है, यहाँ पर एम्ब्लेम है मेड अप ऑफ सम ब्रास और ब्रॉन्ज मटेरियल, यहाँ पर कुछ आपको रोल्स दिख रहे होंगे स्टील के, उसके बाद में कुछ सर्किट आपको दिख रहा होगा जिसमें कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है. फिर यहाँ पर हम कुछ इंडस्ट्रियल पैनल्स देख रहे हैं, पाइप्स देख रहे हैं, बार्स देख रहे हैं. ओके, सो दीज आर थिंग्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड. Okay, and they are manufactured from the matter and that is called as the material. इसको हम बोलते हैं material, the matter from which a thing is or can be made. So it is very simple. So I hope material and metallurgy is clear to you. Now we'll move to the classification of materials. Materials को कैसा classify किया जाता है. Now basically materials are classified in 4 different types. First one is metals. You can see, all of you know that most of the part of our daily life is associated or is surrounded by metals. हमारा जो डेली लाइफ है, हमारा जो ज़िंदगी है, इसके आजू बाजू में आप काफ़ी मेटल्स को देखते हैं. बहुत सारे मेटल्स आर जनरली हार्ड, दे आर हैविंग सम शाइनी structure when they are polished, they are scratch resistant, and likewise they can conduct electricity as well as heat. They are conductor of electricity and heat. Okay, so these are the some of the properties, distinguishing properties of metals. Now you can see the various metals present here. This is one is brass, this one is bronze, this is metal sludge, this one is steel, this one is copper, this one is cast iron, then this one is aluminum. Now these all metals are used extensively in our industrial applications.
अलग अलग जगह पर अलग अलग मेटल्स इस्तेमाल किए जाएंगे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हम माइल्ड स्टील का इस्तेमाल करते हैं। एरोप्लेन्स में हम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के अलॉयज़ का इस्तेमाल करते हैं। देन हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस में हम कॉपर के अलॉयज़ का इस्तेमाल करते हैं। देन फॉर सम मैकेनिकल एप्लीकेशंस लाइक मशीनरीज कास्ट आयरन का इस्तेमाल किया जाता है, माइल्ड स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। सो दीज metals are extensively used in our day-to-day life as well as in industrial applications. So this one is the first classification of materials. Then there comes non-materials like ceramics. You also use this ceramics in your day-to-day life. जैसे आपका चाय का कप है, आपके मग्स है, आपके घर के कोई बर्तन है, यूटेंसिल्स है. So these things are manufactured by using क्ले को हम क्या करते हैं, जलाते हैं, उसको भट्टी में हम हीट करते हैं एंड देन वी प्रोड्यूस ceramics. These ceramics are nowadays are also being used in various इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस. जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ सर्किट ब्रेकर के कवर्स है, कुछ पैनल्स है, कुछ नाइफ है, कुछ कवर है मोबाइल के. देन देर आर सम लाइटिंग कंपोनेंट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम सेरामिक्स. देन कुछ रिंग्स है, कुछ बुशेस है, अलग अलग किस्म की चीज़ें हम क्या करते हैं इन सेरामिक्स से बनाते हैं. इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें सेरामिक्स का, जो आपके डे टू डे लाइफ में आप इस्तेमाल करते हैं इन विच इज़ समवॉट सिमिलर टू इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इज़ नथिंग बट योर MCB स्विच, जिसको आप किटकैट स्विच भी बोलते हैं. आपका जहाँ पर फ्यूज़ लगा रहता है घर का, उस फ्यूज़ का जो बॉडी है वो बॉडी बनाया जाता है हमारे सेरामिक मटेरियल से. उसके साथ ही साथ में हमारा जो सेरामिक मटेरियल है वो हमारे मोटरसाइकिल के स्पार्क प्लग में भी यूज़ होता है. तो स्पार्क प्लग का जो बाहर का हिस्सा रहता है, इट इज़ ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम सेरामिक्स. सो जो सेरामिक की ख़ास प्रॉपर्टी है, जैसे मेटल की है, मेटल शाइनी रहते हैं, मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वैसे ही सेरामिक का जो ख़ास प्रॉपर्टी है वो है इसका हीट रेजिस्टेंट. ये काफ़ी हीट रेजिस्ट करते हैं, ये बहुत सारी हीट को रेजिस्ट करते हैं. इसके लिए इसको कई हीट रेजिस्टिंग लाइनिंग्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बॉयलर के अंदर की लाइनिंग्स होंगी या किसी फर्नेस के आजू बाजू की लाइनिंग्स होंगी, उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है. देन देर आर पॉलीमर्स. ऑल ऑफ यू नो द पॉलीमर्स. द मेन पॉलीमर इज़ योर प्लास्टिक विच इज़ क्वाइट ट्रबलसम फॉर अस. हमारे को जो काफ़ी इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं ये है, लेकिन ये भी हमारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाता है. पॉलीमर्स में हम दो मेन पॉलीमर्स का इस्तेमाल बहुत एक्सटेंसिवली करते हैं इंडस्ट्री में. वो है एक प्लास्टिक और दूसरा है रबर. तो आपने PVC के पाइप देखे होंगे, बॉटल्स देखे होंगे, रबर के टायर्स देखे होंगे. सो दीज ऑल थिंग्स आर योर पॉलीमर्स. ओके, जनरली ये जो पॉलीमर्स है ये इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव टाइप रहते हैं. इसके लिए इसमें कई बार बुशेस में इस्तेमाल किया जाता है, कोई कवरिंग्स में इस्तेमाल किया जाता है. बहुत सी जगह पर इनका यूज़ आजकल हम करते हैं. उसी तरीके से एक चौथा क्लास है मटेरियल्स का जो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है नाउअडेज, एंड दैट इज़ योर कंपोजिट्स. कंपोजिट्स जो है ये कंपोजिट्स हम नाम में ही है कि हम कंपोज करते हैं 2 से 3 अलग अलग मटेरियल्स को एक साथ कंबाइन करते हैं. जैसे कि यहाँ पर आपको एक शीट दिख रही होगी. सो ये शीट एक किस्म का पैनल है. इस पैनल को हमने अलग अलग 5 अलग अलग शीट्स से बनाया है. ये एक जो कंप्लीट पैनल है, इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम 5 डिफरेंट शीट्स एंड विच इज़ हैविंग वेरियस properties, which is having different properties. To make a material suitable for a particular property, for a particular application, we combine various properties of different materials in composite. जैसे अगर मैं इसको बोलूँ ये एल्यूमिनियम की शीट होगी, ये उसके नीचे स्ट्रेंथनिंग का एक शीट है, ये उसके नीचे मैट्रिक्स का शीट है जिसको हम और स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम और स्ट्रेंथ देना चाहते हैं मटेरियल को. और उसी तरीके से उसको अलग अलग लेयर्स में अलग अलग रोटेशन में हमने क्या किया है, ये कंपोजिट शीट बनाया है. इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे घर में जो हम डोर्स यूज़ करते हैं कंपोजिट पैनल के, आजकल के जो दौर में यूज़ किए जा रहे हैं पैनल्स,
जिसको हम कई बार एल्यूमिनियम पैनल भी बोलते हैं, कई बार हम कंपोजिट पैनल भी बोलते हैं। तो इन पैनल्स के हम डोर्स यूज़ करते हैं। इसके अंदर अलग अलग लेयर्स में अलग अलग डायरेक्शन में शीट्स को क्या किया जाता है, फिट किया जाता है, इसको बोलते हैं हम कंपोजिट। और एक एग्जांपल अगर हम देखें कंपोजिट का तो है हमारा प्लाईवुड। प्लाईवुड में भी आप देखते होंगे कि ऊपर का और नीचे का जो शीट है वो काफ़ी मजबूत रहता है, थिक रहता है। इसके बीच में गैप में हम छोटे छोटे शीट्स लगाते हैं या छोटे छोटे बार्स लगाते हैं, उसके अंदर कुछ भूसा भी भरा रहता है। सो लाइक दैट इन लेस मटेरियल we get more properties, so that is your composite. So this is your classification of materials. Then we will move towards the properties of materials, and now these properties are required for selecting the various materials for various applications. अलग अलग application में जो material हम select करेंगे वो selection depend करता है इन properties of materials के ऊपर। तो पहला प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ। दैट स्ट्रेंथ इज नथिंग बट इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच अपोजेस द डिफॉर्मेशन और ब्रेकडाउन ऑफ मटेरियल इन प्रेजेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स और लोड। जब भी आप किसी मटेरियल के ऊपर लोड या फोर्स अप्लाई करते हैं एक्सटर्नली, वो मटेरियल उस फोर्स को, लोड को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। और इसी रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं। अब ये रेजिस्ट किस चीज़ से करता है, इट रेजिस्ट फ्रॉम डिफॉर्मेशन। उसका शेप और साइज डिफॉर्म होने से, चेंज होने से मटेरियल क्या करता है, उस लोड को रेजिस्ट करता है। सो उस चीज़ को बोला जाता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। व्हेन इट इज फेसिंग योर टेंसाइल force, then it is called as your tensile strength. When it is facing the compressive load, then it is called as its compressive strength. जैसे कि cast iron है, cast iron is having a very good compressive strength, whereas mild steel is having a very good tensile strength. So these materials, the materials which have good strength are widely used in various industrial applications. Now materials which we finalize for our engineering products must have suitable mechanical strength to be capable to work under different mechanical forces or loads. Okay, now this is the strength. Now second thing is your toughness. Yes, it is the ability of a material to absorb shocks. जो shocks रहते हैं या जो लोड्स रहते हैं या जो फोर्सेस हैं, इसको एब्जॉर्ब करने का जो प्रॉपर्टी है मटेरियल का, इसको बोलते हैं हम टफनेस. इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब द एनर्जी and gets plastically deformed. Now in toughness the deformation will happen but fracturing will not happen. In strength there is in strength की वजह से जो deformation है वही नहीं होने देते हैं material, but in toughness the shocks or the loads or the forces are absorbed with some deformation. मतलब shape क्या होगा, change होगा, but there will not be any fracturing. Okay, and when it fractures that means the toughness has reached its limit. So it is the ability of material to absorb the energy and gets plastically deformed without any fracturing. Now its numerical value is determined by the amount of energy per unit volume. It is given by joule per cubic meter. Now the value of toughness of material can be determined by stress strain characteristics of that particular material. Now कई बार, now most of the time the toughness is associated with how hard a material is. Now that is totally incorrect. Okay, now I'll tell you why it is totally incorrect. Because for good toughness materials should have good strength. They should have good strength as well as ductility. Because if a material is brittle then it will get broken by the externally applied force, it will get shattered. And that's why for a tougher material to have a good toughness, the material should be having good strength as well as ductility. Whereas for a brittle materials having good strength, which is having good strength but limited ductility, the material will not be tough enough.
सो जितना मटेरियल हमारा डक्टाइल रहेगा, जितना उसका स्ट्रेंथ अच्छा रहेगा, उतना ही उसका टफनेस ज़्यादा रहेगा। जितना मटेरियल ब्रिटल रहेगा उतना उसका डक्टिलिटी कम हो जाएगा, उसी वजह से उसका टफनेस भी क्या हो जाएगा, वहाँ पर कम हो जाएगा। ओके, बिकॉज what we are doing here in toughness is we are deforming material without fracturing. Okay, and brittle material cannot deform so much, they get fractured easily. ये हमने स्टडी किया है हमारे सॉम के अंदर, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम के अंदर आपने स्टडी किया है फॉर अ ब्रिटल मटेरियल एंड फॉर अ डक्टाइल मटेरियल। कॉन्वर्सली मटेरियल्स हैविंग गुड डक्टिलिटी, जिसकी डक्टिलिटी अच्छी है बट हैविंग लो स्ट्रेंथ आर ऑल्सो नॉट टफ इनफ। ओके, so therefore a material should be ductile as well as its strength should be good for being a tough material. Now next one is hardness. It is the ability of material to resist to permanent shape change due to external stresses. Now cast iron as compared with mild steel is harder because its hardness is high and the ability of that particular cast iron to resist permanent shape change is good. Okay, whenever you are applying some external stresses, external forces, material resists to change its shape, and that property is called as hardness. There are various measures of hardness, अलग अलग टाइप के हार्डनेस है, जैसे कि स्क्रैच हार्डनेस है जिसको आप स्क्रैच रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, जिसके अंदर मटेरियल पे स्क्रैचेस नहीं गिरते हैं। उसी तरीके से इंडेंटेशन हार्डनेस है जिसकी वजह से किसी चीज़ को अगर आप उसमें इंसर्ट करें, किसी पिन से, किसी शार्प ऑब्जेक्ट से अगर आप उस मटेरियल को पोक करते हैं, दबाते हैं, तो उसमें किसी भी तरीके के डेंट नहीं पड़ेंगे, मतलब छेद नहीं होगा या उसके अंदर कोई एक आधा पर्टिकुलर होल नहीं होगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इंडेंटेशन हार्डनेस। देन देयर इज रिबाउंड हार्डनेस। रिबाउंड हार्डनेस नेम इटसेल्फ सेज दैट समथिंग इज गेटिंग रिबाउंडेड, मतलब उछल के वापस आ रहा है। यस, सो हम इस रिबाउंड हार्डनेस को कैसा करते हैं, तो इसमें हम एक डायमंड टिप वाला टूल यूज़ किया जाता है जिसको हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर हाइट से उस मटेरियल के ऊपर ड्रॉप करते हैं, और उसके ड्रॉप करने के बाद में वो कितना उछलता है, कितने हाइट पे उछलता है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं रिबाउंड हार्डनेस से। ओके, सो इट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेटेड विथ हाउ डक्टाइल द मटेरियल इज़, बिकॉज जो डक्टाइल मटेरियल है वो क्या करेगा, उस ड्रॉप किए हुए टूल को कम उछालेगा। वहीं पर हार्ड अगर मटेरियल है तो वहाँ पर उछाल ज़्यादा रहेगा, सो रिबाउंड विल बी मोर। सो यू विल कम टू नो हाउ हार्ड द मटेरियल इज। देन इट्स लाइक रिबाउंड हार्डनेस इज़ लाइक बॉलिंग। एक बॉल अगर आप सादी ज़मीन पर पटकते हो, नरम ज़मीन पर पटकते हो मिट्टी वाले, तो कम उछलता है। वही अगर आप उसको सीमेंट की पिच पे पटकते हो तो वो ज़्यादा उछलता है। सो जो चीज़ हार्ड है उससे ज़्यादा उछाल हमको मिलेगा, एंड देन विल कैलकुलेट रिबाउंड हार्डनेस। Then brittleness of a material indicates that how easily it gets fractured, कितने आसानी से उसके टुकड़े हो जाते हैं, फ्रैक्चर होता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम brittleness. Okay, now when a brittle material is subjected to a stress, it absorbs very less energy. उसमें कम एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, and it gets easily fractured without significant strain, without changing the shape or without deforming, it gets fractured easily. So best example of your brittle material is your chalk, your bricks जो है, आपकी ईंटें जो है या चौक जो है, वो क्या होता है, easily break हो जाता है, they are brittle. Okay, so brittleness is converse to ductility. जो ductility है उसके बिल्कुल अपोजिट है। डक्टिलिटी में आप फोर्सेस लगाओ, स्ट्रेस लगाओ, उसको खींचो, तानो, वो क्या होते जाता है, शेप चेंज होता है, बट इट डज नॉट गेट फ्रैक्चर्ड ईजीली। बट वेयर एज ब्रिटलनेस में वही चीज़ अगर आप करोगे तो वो क्या हो जाता है, ईजीली फ्रैक्चर हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज मैलेबिलिटी. मैलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, जिसको हम थिन शीट्स में, पतली शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ऐसे प्रॉपर्टी को मटेरियल के बोला जाता है मैलेबिलिटी. हाउ it is also associated with its compressive stress. Malleability is the property of solid materials which indicates that how easily a material gets deformed under compressive stress. अगर हम compressive stress
उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, कॉम्प्रेसिव फोर्सेस अगर हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो वो मटेरियल कितने अच्छे से शीट में कन्वर्ट होगा या कंप्रेस होगा, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है malleability. Malleability is often categorized by the ability of material to be formed in the form of thin sheet by hammering or rolling. Okay, now next one is ductility. Ductility is similar to malleability. In malleability we are saying that the material can be converted into thin sheets, but here we say that ductility is the property by virtue of which it can be drawn into wires, जिसको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसी मटेरियल की प्रॉपर्टी को बोला जाता है डक्टिलिटी. इट इज़ द प्रॉपर्टी of solid material which indicates that how easily a material gets deformed under tensile stress. अगर आप उसको खींचोगे, टेंसाइल फोर्स अगर उसके ऊपर अप्लाई करोगे, तो वो मटेरियल कितना डिफॉर्म होता है, इस एबिलिटी को बोलते हैं डक्टिलिटी, एंड विच इज मोस्ट ऑफ द टाइम associated with wire pulling. This mechanical property is also an aspect of plasticity of material and is both of them are very dependent on temperature, because as the temperature rises these properties gets reduced. ये क्या होता है, ये इनकी जो स्ट्रेंथ है, डक्टाइल स्ट्रेंथ है, मैलेबल स्ट्रेंथ जो है, ये क्या होती जाती है, कम होती जाती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ. ओके, सो द डक्टिलिटी मटेरियल जो है, डक्टाइल मटेरियल आर लाइक योर कॉपर, एल्यूमिनियम, then your alloys of copper are your ductile materials, malleable materials like aluminum, then again copper का भी है जो malleable है, then gold is also malleable, then your silver is also malleable, so like this. So with rise in temperature ductility of material increases, and with rise in temperature the malleability of material also increases. So this is your ductile and malleable material. Now the creep and fatigue are most of the time you can say are considered similar one, but they have slight difference. Now creep is the property of material which indicates the tendency of material to move slowly and deform permanently under the influence of a constant external stress. एक आधा मटेरियल जिसके ऊपर आप कुछ वजन रख दो, जिसके ऊपर आप कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दो, इस फोर्स की वजह से जो मटेरियल है उसमें क्या होते जाएगा, एक परमानेंट डिफॉर्मेशन क्रिएट होता जाएगा, स्लोली वो डिफॉर्म होता जाएगा. इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है क्रीप. और वहीं पर फटीग जो है, फटीग इज स्लाइटली डिफरेंट, बिकॉज इसके ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई होते हैं, दीज फोर्सेस आर रिपीटेड फोर्सेस. जबकि क्रीप में जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, वो कंटिन्यूअस है. यहाँ पर रिपीटेड फोर्सेस हम क्या करेंगे, फटीग के अंदर यूज करेंगे. सो फटीग इज वीकनिंग ऑफ मटेरियल कॉज्ड बाय रिपीटेड लोडिंग ऑफ द मटेरियल. जैसे कि आप हैमरिंग कर रहे हो, कंटिन्यूअसली हैमरिंग कर रहे हो, और वही क्रीप में आप क्या कर रहे हो, उस हैमर को एक जगह पर रख दे रहे हो. ओके, क्रीप and fatigue is like this. So when a material is subjected to cyclic loading and loading greater than a certain threshold value but much below the strength of material, so at that time we say that it is going under the fatigue. Okay, so then there is production of the cracks produce होते हैं, then the deformation is there, and then there is fracture is there. So likewise the creep and fatigue is defined here. So I think it is enough for today. So thank you. Please stay safe, stay home, keep learning, and please subscribe to my channel, like this video and share this video. Thank you so much.